ICC students, listen this very much carefully because in 24 hours also you can change many things. Watch this video very much carefully. Hey guys, it's Karan and I hope everyone watching this video are taking care of themselves and welcome back to my channel. I'm posting this video one day before your English language paper because tomorrow is not for your YouTube videos, okay? It is just for tightening what you have already studied and for your revisions. And for those students who are watching this video on 16th of February, कल आपका English language paper है. So right now, please do not panic at all. Take a deep breath and start practicing. Okay, English language paper is very much important because that is like gonna count in your top 5 subjects, so you have to practice and give your best on that paper. Okay, now let's utilize this few minutes very productively. First of all, let's talk about your revisions, your essay. You have to at least practice 2 types of essay very much carefully, either narrative and descriptive या फिर argumentative and story. अच्छे से दोनों essays practice कर जाओ because exam hall में at least you have to keep 2 choices, है ना. कॉम्पोजिशन के लिए डूज एंड डोंट्स अच्छे से याद कर जाओ. लाइक कॉम्पोजिशन में एसएमएस वोकैबुलरी यूज नहीं करना है, लाइक वाना गोना. फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, कांट डिडंट ऐसा यूज नहीं करना है. एंड डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग एंड बट एंड सो. ओके, फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट लेटर में आपको फॉर्मेट अच्छे से याद कर जाना है. नोटिस एंड ईमेल के लिए भी सेम है, फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ. फॉर ग्रामर डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, स्टे काम और ग्रामर को अच्छे से सॉल्व करो. एटलीस्ट चेक फॉर 2 टाइम्स. इंग्लिश में सब कुछ अनसीन आता है, आपको पता नहीं होता कि क्या आने वाला है, क्या होगा क्वेश्चन, बट यू नो द फॉर्मेट है ना. कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, नोटिस, ईमेल, लेटर राइटिंग और फिर ग्रामर पोर्शन आएगा. इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में. सो यू नो एवरीथिंग, सो प्लीज प्रैक्टिस. 1 मार्क्स में बहुत मायने रखता है, आपके परसेंटेज बढ़ा दे सकता है ना. सो प्लीज 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 work very hard. कर आप प्रैक्टिस करो previous year questions, 10 years previous year questions प्रैक्टिस करो. Now the most important thing is do not focus on any other subjects for the time. ओके, ऐसा नहीं कि मैंने फिजिक्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, केमिस्ट्री का कंप्लीट नहीं किया है, बिकॉज यू विल गेट टाइम फॉर दोज टास्क. ओके, हमारे पास गैप है, से हमारे पास कुछ दिन और बाकी है. It is after February है ना, आपका साइंस पेपर is after February, so you will definitely get time to study those stuffs. And don't worry, I am there for you. I will keep on making the videos and help you how to cope up with the unfinished syllabus. So right now, please focus on English language because that is the first paper. अगर आपने पहला ही पेपर अच्छा नहीं दिया है, so forget about getting good marks in other papers, यार, because first में ही आप discourage हो चुके हो. Okay, now let's talk about the most important thing, that is sleep. You have to at least sleep for 6 to 7 hours minimum before your exam. Okay? क्योंकि जब आप सोओगे तो जितना कुछ आपने दिन भर पढ़ा है वो रिटेन होगा. आप रिविजन कर रहे हो, जब भी आप सो रहे हो ना, आप रिवाइज कर रहे हो, आप रिटेन कर रहे हो जो कुछ भी आपने पूरे दिन पढ़ा है. क्योंकि नेक्स्ट डे आप कुछ भी नहीं भूलोगे और आराम से अपना पेपर देने जाओगे और अच्छा भी जाएगा आपका पेपर, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है ना. कुछ बच्चों ने 2 दिन पहले से स्टार्ट किया है पढ़ना. डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपने 2 दिन पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है. इवन ट्राई टू सिट इन अ चेयर एंड अ डेस्क for 2 hours straight because you are not allowed to go to the washroom or anywhere as such during your exam time. So you have to prepare yourself beforehand only. Okay, the most important thing is do not search any other YouTube videos now. Like 10-12 videos मत देखो because हर एक वीडियो में आपको नया strategies मिलने वाला है जो आप फॉलो ही नहीं करते हो. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. जब मेरा एग्जाम था कल, मैंने आज बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे एंड हर एक वीडियो में हर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मुझे मिला था. सो आई ट्राई टू फॉलो दो स्ट्रैटेजीज एंड इट डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल. सो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है. फोकस ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ. ओके, कल आपको नया स्ट्रेटजीज यूज नहीं करना है, कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है. जितना पढ़ा है वही काफ़ी है. स्टिक टू दैट, उसमें ही फोकस करो, उसमें ही इम्प्रूव करने की कोशिश करो बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प यू. बिकॉज आपके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है. लाइक लेट्स से यू डू नॉट इवन हैव 24 आवर्स, क्योंकि आधे टाइम तो आप लाइक सोच कर जाते हो, ये वीडियो देखने में आपने टाइम वेस्ट कर देते हो, है ना.
कभी आपको वॉशरूम जाना है, कभी आपको खाना है, कभी आपको क्या करना है, कभी कभी आप प्लानिंग कर लेते हो। तो नया स्ट्रेटजीज में फोकस मत करो, जितना प्रैक्टिस किया है, जो भी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करती हो उसमें फोकस करो एंड स्टिक टू दो स्ट्रेटजीज ओनली। यू हैव गॉट दिस। और उसके बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर डू नॉट डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर्स विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीवन। लाइक तूने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, ऐसे डिस्कस मत करो, बिकॉज दैट इज ओनली गोना क्रिएट सम एंजाइटी। अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ यू विल फील डिस्करेज, फिर घर आओगे, फिर उसमें रोने लगोगे, फिर कल का पेपर या फिर परसों का पेपर में आप फोकस नहीं कर पाओगे। जो आपने किया तो किया, बट स्टिल राइट नाउ यू हैव टाइम, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया होता, रिग्रेट मत लो। ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नर्वस राइट नाउ। जब मैं आपके पोजीशन में थी मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी। सो इट इज अ साइन दैट यू केयर फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन 17th of February. Best of luck all of you. Meet you in my next video. Bye bye.